दुनिया सजा देती है और मजा लेती है और फिर कभी कभी रुला देती है। सिर्फ दो ही हैं जो आपकी सफलता की कामना करते हैं और आपको सिखाते हैं। कई बार मुझे लोग सुझाव देते हैं कि आपका ये जगह, आप यहाँ पर कोई इस तरह का मॉल खोल लो, इस तरह का कोई आप रेस्टोरेंट खोल लो, आप कोई इस तरह की फैक्ट्री लगा लो। मुझे लगता है कि सब काम अच्छा है, दुनिया में सब काम अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा काम है पढ़ाने का काम। मतलब मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, लेकिन असली प्रोग्रामर तो आप लोग हो जो भगवान के बनाए हुए कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं। आप लोग, हमारे छात्र ही हमें होशियार बनाते हैं। उनकी होशियारी देख करके हम लोग नए नए तरीके निकालते हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो बर्तन जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बने और जहां भी जाए लोग उसकी तारीफ करें। और हमारी श्रम शक्ति से आज पूरा देश चल रहा है, मेधा शक्ति हमारी बाहर जा रही है और हमारा कौशल ये भी बाहर जा करके ही अपना योगदान दे रहा है। तीनों का पलायन हो रहा है। जो मेरा एक पेन पॉइंट है, पेन पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था अभ्यानंद सर से, हर एक शिक्षण संस्थान का ये पेन पॉइंट हो गया है कि अच्छे बच्चे कहां से मिले। तो अपने आप को अपडेट करना एक शिक्षक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप में से हर एक शिक्षक के पास अपने घर में एक निजी लाइब्रेरी होनी चाहिए। नॉन ग्रांटेड, मतलब हमारे को कोई ग्रांट नहीं मिलता, कोई अनुदान नहीं मिलता है, और हमने फीस निर्धारित करी है बीकॉम के लिए 1,31,000 रुपए, सेमेस्टर की नहीं, साल की नहीं, पूरे 3 साल की। और मैं यही कहता हूं कि टीचर्स ने तो अपने आप को डिवोट कर दिया है बच्चों के लिए। तो आप लोगों सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। I'm truly honored and privileged to stand before you today to address this gathering. We have come together on this occasion to honor the ones who hold significant importance in our society. And they are none other than but our teachers, our respected teachers. You people are there. In the next few moments, I would like to take the opportunity to delve into the intricacies of the program and shed some lights on the various aspects. It's my sincere hope that our collective exchange of ideas and perspective as a teacher, as a mentor, will lead us towards a deeper understanding and perhaps will lead us to even innovative solutions to contribute to society. I extend my gratitude to each and everyone present here, as your presence underscores the value we collectively place on the pursuit of knowledge. It is through such exchanges that we continue to grow as individuals and as a community of teaching fraternity. Without further ado, let us embark on the journey of exploration, collaboration, contribution, and enlightenment too. Together, we can forge a path that not only broadens our horizon, but also contributes positively to the world around us. So all the dignitaries and guests, with great joy and immense pleasure, I feel privileged to extend my warm welcome to all present here on the occasion of Bapu Shiksha Samman 2023, organized by Simaj Group of Institutions. I am profusely elated to take this opportunity to introduce our chief guest of the day, Shri Abhyanand Ji, ex-DGP of Bihar, an author and renowned educationalist of Bihar. Sir, we feel honored to have you with us as the honorable chief guest of the day. You hardly need any introduction. You have made all of us proud with your distinguished work in numerous capacities. We also have the chairman of Simaj Group of Institutions, Shri Vasant Kumar Agrawal Ji, and the director sir on the stage. Now, may I invite Mr. Neeraj Agrawal, the director of Simaj Group of Institutions, the man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge, experience, and inspiration of all, to welcome the guest by presenting the welcome speech and also throw some lights on the importance of this event. Sir. दुनिया सजा देती है, दुनिया सजा देती है और मजा लेती है और फिर कभी कभी रुला देती है। सिर्फ दो ही हैं जो आपकी सफलता की कामना करते हैं और आपको सिखाते हैं, माता पिता और गुरु। और आज उन गुरुजनों का सम्मान करने के लिए हम लोग यहां जुटे हैं और शिक्षक बिरादरी का ये एक समागम हुआ है। मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं, मेरे दिल में जिस तरह के भाव उभर रहे हैं। इतने सारे शिक्षक आज हमारे आह्वान पे यहां आए हैं, मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत स्वागत करूंगा अभ्यानंद सर का, जिनको मैं यहां शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में, बिहार के जो एक व्यक्ति को अगर रिप्रेजेंट करना हो बिहार के शिक्षक कम्युनिटी को, तो हम अभ्यानंद सर में उस शिक्षक को देखते हैं। और आज बापू शिक्षा सम्मान के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सर आपने
यहाँ आकर के हमें अनुग्रहित किया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। और मैं अपने पहले गुरु, अपने पिता, और जिनकी प्रेरणा से आज ये संस्थान मैंने शुरू किया और जिनकी प्रेरणा से मैं इनके सपनों को पूरा करने के लिए अग्रसर हूँ, मैं उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ, अपने पिता बसंत अग्रवाल जी से। और बहुत दिनों के बाद हमारे किसी कार्यक्रम में पिताजी आए हैं। इनका स्वास्थ्य थोड़ा अभी इधर में अच्छा नहीं रह रहा है, तो कम ही कार्यक्रमों में आ पा रहे हैं। मुझे लगता है कई साल हो गए सिमज की किसी शाखा में नहीं आए हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में आए और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और सभी कार्यक्रम में पापा का हमें साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। तो एक बार पापा के लिए आप लोग सब लोग बहुत जोरदार तालियां बजाएं। और मैं अपने प्रोफेशन को, और या मैं हमारे प्रोफेशन की अगर हम बात करें, एक टीचर के रूप में जो हमारी भूमिका है, जब मैं सोचता हूं, जब मैं देखता हूं, कई बार मेरे पास, चूंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूं जहां पर परिवार बहुत विस्तृत है, अनेकानेक शाखाएं परिवार की पूरे भारत में फैल गई हैं और अलग अलग तरह के प्रोफेशन में परिवार के सदस्यगण हैं। शायद मैं अकेला ऐसा सदस्य हूँ इस पूरे विस्तृत परिवार का। अगर मैं बात करूँ, 8 पीढ़ी से हम लोग बिहार में हैं और बिहार में धमोल और वारसलीगंज, कोई आप में से कोई जान रहे हैं वारसलीगंज के बारे में शायद? तो वारसलीगंज में हम लोग पिछले 7-8 पीढ़ी से वहाँ से रह रहे हैं, पटना अब आए, तो प्योर बिहारी हैं उस लिहाज से। लेकिन अगर हम इस 8 पीढ़ी के परिवार को विस्तृत करते हैं, शाखाओं को देखते हैं, तो मैं शायद अकेला सदस्य हूँ जो शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। कोई डॉक्टर है, कोई अधिकारी हैं, किसी का फैक्ट्री है, कोई किसी कारोबार में है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है। कई बार मुझे लोग सुझाव देते हैं कि आपका ये जगह, आप यहाँ पर कोई इस तरह का मॉल खोल लो, इस तरह का कोई आप रेस्टोरेंट खोल लो, आप कोई इस तरह की फैक्ट्री लगा लो। मुझे लगता है कि सब काम अच्छा है, दुनिया में सब काम अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा काम है पढ़ाने का काम। क्यों है ना? क्योंकि आप कोई कपड़ा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, हम क्या बना रहे हैं? हम उस बच्चे का मस्तिष्क बना रहे हैं। मतलब मैं प्रोग्रामिंग सिखाता हूं स्टूडेंट्स को, हमारे यहाँ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाई जाती है, लेकिन असली प्रोग्रामर तो आप लोग हो, जो भगवान के बनाए हुए कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हैं आप लोग। उसमें वो सारे टूल्स डालते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर डालते हैं जिसके बल पे उसका सुपर कंप्यूटर वर्क करता है। अगर टीचर ये काम ना करे तो वो कंप्यूटर क्या काम करेगा? वो तो ब्लैंक कंप्यूटर होगा। तो ये जो छात्रों को आप लोग जो दे रहे हैं, जो मस्तिष्क को गढ़ रहे हैं, उसके जीवन को गढ़ रहे हैं, एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और इसमें थोड़ी पीड़ा मुझे होती है यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि शिक्षण कार्य को, जो ये नोबल प्रोफेशन है, इसको जब देखा जाता है किसी दूसरे प्रोफेशन के तुल्य कि भाई ये मूल्य दे करके ये खरीदा जा सकता है, ज्ञान को मूल्य दे करके खरीदा जा सकता है, ये ऐसी वस्तु नहीं है। मुझे लगता है एक बहुत ही आत्मीय संबंध, यहाँ जितने शिक्षक बैठे हैं, जितनी शिक्षिकाएं बैठी हैं, अनेकानेक छात्रों का नाम चेहरे से आप पहचानते हैं और आपको पता है कि आपका वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। आप जानना भी चाहते हैं कि आपका बच्चा कहाँ गए, क्या कर रहा है। जैसे आप अपने घर के बच्चे के लिए चिंतित होते हैं, वैसे ही उसके लिए भी चिंतित होते हैं, और जब उसकी सफलता पता चलती है तो आप वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो ये जो शिक्षक का ये आत्मीय संबंध है, इसे हम किसी रुपए पैसे या ये प्रोफेशनल सर्विस के रूप में कि गए हेयर कटिंग कराने के लिए पैसा दिया, हेयर कटिंग करा लिया। टीचर सब और स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो बहुत आत्मीय है। यहाँ पर जब आपके दिल में कोई छात्र जगह बनाता है, उसको आप क्या ना दे दो और उसके लिए क्या ना करो, इस तरह के भाव मन में रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को हमें समझना होगा, देखना होगा। तो मैं आप सबका स्वागत भी करता हूँ। और अभयानंद जी की किताब आपको बताई गई कि भी पीछे हमने यहाँ डिस्प्ले के लिए रखी। हमें ये किताब जो है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में और एक शिक्षक के रूप में जो इनके मनोभाव हैं, वो सारा कुछ आपको देखने, समझने और सुनने को पढ़ने को मिलेगा आपको। मुझे लगता है कि आज थोड़ा समय लगा करके हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वो किताब आप यहाँ पर इसको प्रीव्यू कर सकें। और इनका व्यक्तित्व बहुआयामी व्यक्तित्व, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत ही महान शिक्षक और एक बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर। तो और मुझे लगता है कि जो काम अभी ये कर रहे हैं, बिहार की एक कहानी ये अपने शब्दों में लिख रहे हैं, तो वो भी पढ़ना बड़ा रोचक होगा। और मैं अपने जीवन की जब बात करता हूँ, मैं जब किसी छात्र के जीवन को देखता हूँ,
तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका जो है वो शिक्षक निभाते हैं, क्योंकि अगर व्यक्तित्व का पहचान, किसी व्यक्ति का पहचान हो तो वो उसके चेहरे और शरीर से केवल नहीं होता है, वो उसके विचारों से होता है। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि व्यक्ति अपने विचारों के समुच्चय से अधिक और कुछ नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति वो अपने विचारों के समुच्चय से अधिक कुछ और नहीं होता है, और वो विचार को जो रोपित करने का काम, उस बीज तत्व को उसके मस्तिष्क में डालने का काम कौन कर रहा है, जिन विचारों से उसका व्यक्तित्व गढ़ा जा रहा है, ये काम तो वो शिक्षक ही कर रहा है। और अगर मैं शिक्षक की तुलना कभी किसी से कर सकता हूं तो वो मैं करता हूं कुम्हार से, क्योंकि कुम्हार जो है वो जिस तरीके से मिट्टी को तैयार करता है, उसको उसमें जो कुछ रुखड़ा कड़ा होता है, जो पत्थर कंकड़ होते हैं उसे हटाता है, उसको गीली मिट्टी को तैयार करता है और फिर उसे चाक पे डालता है, उसको आकार देता है और फिर उसे आग में तपाता है, और उसके बावजूद उसको भरोसा नहीं होता, परीक्षा लेता है। जैसे हम लोग एग्जाम लेते हैं, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। आजकल सरप्राइज टेस्ट लेना पड़ता है कि अनाउंस करके टेस्ट लेते हैं तो बच्चा क्लास में एब्सेंट हो जाता है। देखिए, अब जितना वो आगे बढ़ेगा उसी के पीछे पीछे हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग सब वही कर रहे होंगे, जैसे जैसे वो होशियारी दिखाएंगे छात्र, वैसे वैसे हम भी पीछे पीछे लगे रहते हैं। ठीक है, वो ये सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। हमारे छात्र ही हमें होशियार बनाते हैं, उनकी होशियारी देख करके हम लोग नए नए तरीके निकालते हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा जो बर्तन जो हम बना रहे हैं वो बिल्कुल सही बने, और जहाँ भी जाए लोग उसकी तारीफ करें। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी ये बात कहता हूँ, आप सबको भी ये बात कह रहा हूँ कि कभी भी अपने स्टूडेंट को अपना कस्टमर मत समझिएगा, हमेशा उसको अपना प्रोडक्ट समझिएगा। वो आपका प्रोडक्ट है, आपने उसको तैयार किया है, वो आपका कोई कस्टमर नहीं है। आपको हमेशा अपने स्टूडेंट को अपने क्रिएशन के रूप में लेना होगा कि आप उसको गढ़ रहे हैं, आप उसको तैयार कर रहे हैं। और बिहार ज्ञान की भूमि रही। आप में से सभी लोग विक्रमशिला, नालंदा और उदांतपुरी इन विश्वविद्यालयों के बारे में जानते होंगे। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ये है कि आप में से अधिकांश शिक्षक जो यहाँ जुटे हैं वो स्कूलों में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो लोग इस कार्यक्रम में यहाँ पे आज सम्मिलित हुए हैं वो स्कूलों से जुड़े हुए हैं। और स्कूलों में हम देख रहे हैं कि माँ बाप 12वीं तक बच्चों को बिहार में रख रहे हैं, लेकिन अधिकांश पेरेंट्स, उनकी ये सोच है 12वीं के बाद बच्चों को बाहर भेजना होगा। बिहार में 12वीं के बाद की शिक्षा के लिए उनके कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि अच्छी पढ़ाई हो सकती कि नहीं हो सकती है। उस भूमि की यह स्थिति है जहां सबसे ज्यादा पूरे विश्व से लोग ज्ञान लेने के लिए आते थे, जहां नालंदा और विक्रमशिला में, उदांतपुरी में पूरे दुनिया से लोग उच्च शिक्षा के लिए आते थे, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के लिए जहां लोग आते थे, वहां यह स्थिति है। और हमारी श्रम शक्ति से आज पूरा देश चल रहा है, मेधा शक्ति हमारी बाहर जा रही है, और हमारा कौशल ये भी बाहर जा करके ही अपना योगदान दे रहा है। तीनों का पलायन हो रहा है, चाहे वो लेबर्स हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो स्टार्टअप फाउंडर्स हो। मेरे स्टूडेंट्स जो स्टार्टअप कर रहे हैं वो भी बाहर जाके कर रहे हैं, और चाहे वो किसी भी रूप में हो, पलायन हमारी एक सच्चाई है। और मैं कहता हूं पटना जो है वो ओल्ड एज होम बनते जा रहा है। आप देखिएगा पटना में बहुत से घर आपको मिलेंगे जहां पर माँ बाप हैं, बच्चा, बेटा बेंगलोर में है, बेटी जो है वहां पुणे में है, दामाद भी वहीं खोज लिए हैं, यहीं का है, मतलब समधियाना यहीं है, लेकिन बेटे दामाद सब, बच्चे बाहर। बच्चों का सुख माता पिता को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मजबूरी बन गई है, जॉब बाहर ही मिलेगा। ठीक है, पलायन बुरा नहीं है। पलायन से आज केरल राज्य की जो औसत आय है वो बढ़ चुकी है, और बिहार में भी पलायन को मैं अभिशाप नहीं वरदान के रूप में देखता हूं। लेकिन मजबूरी वश पलायन, और फिर पलायन का स्वरूप क्या हो। जो बच्चे बाहर जा रहे हैं वो किस कार्य में जा रहे हैं, वो कितना हुनर लेके जा रहे हैं, किस तरह का स्किल लेके जा रहे हैं, और फिर उनका किस रूप में स्टेट में कंट्रीब्यूशन हो पा रहा है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक एज मैं देखता हूं, बिहार में डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरे कंट्री में सबसे हाई है। यानी जो एवरेज एज है बिहार की वो देश की एवरेज एज से थोड़ी कम है। युवा राज्य है, 4 करोड़ की आबादी है बिहार में युवाओं की, जिनको तुरंत अभी आप किसी भी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते हैं, जिनको आप जॉब दे सकते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक बात मैं इस मंच से बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन राजनीति में आपने सुना होगा कि 10 लाख को जॉब देना है, कोई बोला 20 लाख को जॉब देना है, और वहां पर भी परिस्थिति जो है वो अनुकूल नहीं है कि कब 10 लाख को जॉब मिल पाएगा। और क्या सरकारी जॉब के भरोसे बिहार के 4 करोड़ युवाओं का उद्धार हो पाएगा?
क्या इन 4 करोड़ युवाओं को सरकारी जॉब मिल पाएगा? अगर 10 लाख को मिल भी गया तो 3 करोड़ 90 लाख का क्या होगा? तो हमें एक कुछ ऐसा युवाओं की, जो हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारी युवा शक्ति है, उसको कुछ इस तरीके से तैयार करना होगा कि वो इस राज्य को आगे ले जा सके। और वो जो हम लोग ये भीड़ तैयार कर रहे हैं कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, अभी शिक्षक भर्ती के लिए पूरा पटना के सारे स्टेशन, बस स्टैंड सब में जाम हो गया। तो हमें लिमिटेड रिसोर्स जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, और सारे उस लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज के लिए हम सारे बच्चों को अगर लगा देंगे तो हम इन 4 करोड़ युवाओं का उद्धार नहीं कर पाएंगे। हमें उन मॉडल्स को सोचना पड़ेगा जिन मॉडल्स के साथ इंडिया के, भारत के दूसरे राज्य आज प्रगति कर रहे हैं। अगर हम सदर्न स्टेट्स की ओर देखते हैं, अगर हम वेस्टर्न स्टेट्स की ओर देखते हैं, वहां कौन सा मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, हमें भी उस मॉडल को अपने यहां पर इंप्लीमेंट करना होगा और हम बेहतर कर पाएंगे। तो अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं आईटी सेक्टर सदर्न स्टेट्स में बहुत सक्सेसफुल हुआ, और बिहार में भी प्रयास होता है, बात होती है कि आईटी पार्क बनेगा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनेगा, तो बिहार को आईटी सेक्टर में आगे बढ़ाना है। लेकिन जब मैं आईटी कंपनियों से बात करता हूं, 2012 में पहला बैच सिमिच का निकला था और पहले बैच का प्लेसमेंट विप्रो में उस साल हुआ था। एक साल भी विप्रो कंपनी ने सिमिच का साथ नहीं छोड़ा। हर साल कॉलेज में हमारे यहां आई है, हर साल बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और हमने विप्रो कंपनी के सीनियर मैनेजर्स को कन्विंस किया कि सर प्लीज स्टार्ट ए डेवलपमेंट सेंटर इन बिहार, यू विल गेट गुड रिसोर्स। उन्होंने पूरा अपना सर्वे किया, बोला नॉट पॉसिबल। बिहार में उनको दिक्कत यह है कि बिहार में वो सप्लाई नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। बोला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमको बैंगलोर में मिलते हैं, पुणे में मिलते हैं, हमको नोएडा में मिलेंगे, हमको गुड़गांव में मिलेंगे, हमको कोलकाता में मिलेंगे, भुवनेश्वर में मिलना शुरू हो गया। उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट सेंटर खोल दिया, टीसीएस ने खोल दिया, विप्रो ने खोल दिया, इन्फोसिस ने खोल दिया भुवनेश्वर में, क्योंकि वहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलने शुरू हो गए। पटना में नहीं मिल रहे हैं उनको। उनका कहना है अब क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि माँ बाप कहते हैं कि पुणे पढ़ाएंगे, बैंगलोर पढ़ाएंगे, कंपनी वहां पर है। कंपनी बोलती है कि बच्चे वहां पर हैं, हम तो ये तो वो जो पहले अंडा आएगा कि पहले मुर्गी, वो मतलब कॉलेज बच्चे वहां जाएंगे जहां कंपनी है और कंपनी वहां जाएंगी जहां बच्चे हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। तो लेकिन शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत कंपनियां पहले नहीं आएंगी, पहले संस्थानों को आना होगा, पहले छात्रों को तैयार करना होगा, तभी कंपनियां यहां पर आएंगी। और मुझे लगता है सरकार में ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। वो फोकस कर रहे हैं आईटी पार्क बनाने में, उनको फोकस करना चाहिए सॉफ्टवेयर की पढ़ाई देने में। जब मैन पावर तैयार होगा तो कंपनी ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बिहार को विकसित बनाने का जिम्मा जो है वो नई पीढ़ी को देना होगा। और ये आप देख रहे हैं तस्वीर उन बच्चों की जिनको प्लेसमेंट इस साल मिला है। और पटना में या बिहार में शायद ही कुछ कॉलेजेस होंगे जहां इस तरह के ग्रुप फोटोग्राफ्स आप देख पाएंगे प्लेसमेंट का। कहीं 4 बच्चों का, 5 बच्चों का प्लेसमेंट तो बहुत जगह आप देख पाओगे, लेकिन एक साथ इतने बच्चों का प्लेसमेंट का तस्वीर आपको देखने का मतलब हमारे को ये बड़ा खुशी होता है कि एक बार में इतने बच्चों को कंपनियां जो है वो प्लेसमेंट दे पाती है। और आज हमारे बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में, हमारे 2-3 स्टूडेंट्स हैं, यहां तक कि टेक्सास में, यूएस में हमारी बच्ची रुचिका माइक्रोसॉफ्ट में है, दिल्ली में आलोक चौहान माइक्रोसॉफ्ट में अजूर क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहा है। हमने एलुमनाई मीटिंग की वहां पर, और एलुमनाई मीटिंग में 2 बच्चे लड़ पड़े आपस में। एक अमेजन वेब सर्वर का काम अमेजन में कर रहा था, एक अजूर का काम माइक्रोसॉफ्ट में कर रहा था, और वो क्लाउड में कुछ बोल दिया एक अपने अजूर के बारे में, दूसरा बोला कि हमारा AWS बेटर है। वो पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर लिया हमने कि दोनों बताते गए कि किसमें क्या बेटर होता है। हम बोले ये मजा है कि एलुमनाई मीट हो रही है और वहां पर AWS और माइक्रोसॉफ्ट अजूर के बीच में लड़ाई हो रही है। तो ये हम सही बताएं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे इंटेल में और माइक्रोसॉफ्ट में और अमेजन में प्लेसमेंट उनको मिल पाएगा। ये मतलब हमारे सोच से ज्यादा हमें मिला। ये जितनी कंपनी रैकस्पेस में, तो ये रैकस्पेस, ये लड़की निशी प्रकाश, कोई मालसलामी पटना सिटी का कोई जानते हो तो ये बच्ची वहां की है, पटना सिटी मालसलामी की, और 1.25 करोड़ का पैकेज इसको मिल रहा है, लंदन में है। और इसका पति राहुल, ये भी मेरा स्टूडेंट है, बोथ आर वर्किंग इन रैकस्पेस लंदन। तो ये, और ये रक्सौल की बेटी समीक्षा गुप्ता, ये अभी टेक्सास में ये भी है, ये इरविंग शहर में है टेक्सास में। विप्रो में इसको प्लेसमेंट हमारे यहाँ से मिला था, विप्रो ने इसको यूएस भेज दिया। और जबरदस्त बच्ची, मतलब हम लोग अपने स्टूडेंट्स को, आप लोग भी बोलते होंगे कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, खेल कूद करो, डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर, पोइट्री, स्पीच, डिबेट। बच्चे माँ बाप बोलते हैं कि ये सब करेगा तो पढ़ाई कब करेगा? और ये बच्ची वो थी जो सारा चीज करती थी, हर डिबेट में, डांस में, कंपटीशन में, बिजनेस इवेंट में, स्टार्टअप में, सब में रहती थी और टॉप भी करती थी। तो आप देखेंगे अक्सर जो बच्चे सारी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं वो बच्चे ओवरऑल अच्छा करते हैं। तो ये वैसी बच्ची हमारी। ये बच्चा सूरज हमारा अभी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ये
ये दुबई में, ये इसने हमारा कॉलेज में ये फर्स्ट बैच का स्टूडेंट था, सिमेज का पहला वेबसाइट इसने हैक कर दिया, उड़ा दिया, तो सस्पेंड किया गया। बुलाए हम इसको, क्या किया, बोला सर हम सिर्फ बताने के लिए उड़ाया कि ये साइट हमारी सिक्योर्ड नहीं है। आज ये लड़का जो है कॉग्निजेंट में है, बहुत अच्छा कर रहा है। अभी इसने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया। कॉग्निजेंट के चेयरमैन ने इसको ट्वीट किया, अपने ट्वीट में इसका नाम टैग किया, इसने मुझे भेजा था। तो ये अनिल सरस्वती पापा होम गार्ड में, सर अभिनंदन सर, होम गार्ड में इसके फादर जो हैं वो हैं, मतलब जो सिपाही रैंक होते हैं जो होम गार्ड का, बहुत ही मतलब मीडियम या कहेंगे कि निम्न आय वर्ग परिवार से, और ये आज 50 लाख का पैकेज इसको इंडिया में मिल रहा है। और उसके ऊपर में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस ईसॉप्स होते हैं, टोटल बताया 92 लाख मिल रहा है ईसॉप्स जोड़ करके। तो ये सफलता हमने इमेजिन नहीं करी थी, ये भगवान ने दिया, या जो हमारा जो कहते हैं ना कि विकल्प है, स्कोप है, काम करने की आवश्यकता थी। और ये अच्छा, लोग बिलीव भी नहीं कर पाते हैं कि इतना सक्सेस बिहार में, हमारे बच्चे आईआईटी में जाते हैं, वहाँ सफलता मिलती है, सबको लगता है मिल सकता है, लेकिन पटना में भी हम वही तो पढ़ा रहे हैं, हम भी तो वही कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, हम भी तो वही प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, और हमारे बच्चे भी उसी प्रोग्रामिंग का काम करने जा रहे हैं। तो ये लोएज यूएस की कंपनी है, 32 लाख का पैकेज इसको मिल रहा है। ये निरंजन, ये भी वही डांस में, इसको हम लोग बाबू मोशाय बोलते थे, राजेश खन्ना का डांस करता था। तो ये सब कहानियां बहुत है, मैं भी समय नहीं ले पाऊंगा इन सब बच्चों के लिए। इंटेल में है कृष्णा कुणाल, मॉर्निंग स्टार, इसने मतलब स्टार्टअप बनाया, इसने ये जो अतुल था, इसकी कहानी जरूर सुनाऊंगा। कोई भी पटना सिटी से यहाँ पर अगर है, क्योंकि मैं पटना सिटी का हूँ, और पटना सिटी में एक मंदिर है तिलेश्वर नाथ मंदिर, एनीबडी नोज अबाउट पटना सिटी? अच्छा, आप जान रहे हैं तिलेश्वर नाथ मंदिर, आप सुने हैं चौक पर जो तिलेश्वर नाथ मंदिर है, तो उसी मंदिर में रहता है पिताजी, मंदिर की देखभाल करते हैं, बहुत छोटा बहुत साधारण परिवार। और इसके साथ कुछ हादसा हो गया घर में, परिवार में हादसा के कारण ये पढ़ाई छोड़ने के लिए आया। मैंने बोला कि नहीं छोड़ना है, तुम्हारा पढ़ाई हम तुमको करने देंगे। अब मुझे नहीं पता था कि उस मंदिर में रहता है, मुझे नहीं पता था कि पटना सिटी से है, मुझे वो सब नहीं पता था, लेकिन मैंने बोला तुमको पढ़ाई करना है, तुम्हारी दीदी के संग ऐसा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, फीस मत दो, पढ़ो। पढ़ा, इसको विप्रो में जॉब मिला, फिर अभी एसेंचर में है, 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, 1.5 लाख रुपया पर मंथ मिल रहा है, घर अच्छा कर लिया, मंदिर अच्छा कर दिया। और मुझे बाद में पता चला कि ये तो उसी मंदिर में रहता है जिस मंदिर में जीवन में सबसे ज्यादा जल हम चढ़ाए। मेरा घर उस मंदिर के ठीक सामने था, किराए के मकान में वहां रहता था सिटी चौक में। अब बाबा मेरे ही हाथों इसका जो सपना था वो पूरा करवाए। तो ये सिमेज जो है, ये जिस तरह की कहानी चल रही है, बिल्कुल आप अगर तालियां बजाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि जिस तरह की कहानियां चल रही है, यही कहानियां मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है जो मुझे इन बच्चों से मिली। और अभी भी जब कभी पटना सिटी जाता हूं, ये आता है, तो ये सब इस तरह के बहुत सारे बच्चों की कहानियां हैं। मैं समय को बचाने के लिए आगे बढ़ूंगा, इसकी कहानी जरूर सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये बच्चा हमारे कॉलेज में सुबह आता था, रात को जाता था। ये जितेंद्र कुमार वहां बैठे हैं, ये हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में संभालते हैं। इन्हीं के साथ, इन्हीं के बाइक से घर से जाता था कि बाइक पैसा बचेगा ऑटो का। ही इस शिवहर से, ये लड़का है शिवहर का है, और आज ये 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा कर रहा है। हमको गर्व होता है कि मेरा स्टूडेंट 5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स जमा कर रहा है। इसने स्टार्टअप दिल्ली में एस्टैब्लिश किया है, और दिल्ली में, गुड़गांव में 8000 एक्सपोर्टर्स हैं। उन एक्सपोर्टर्स को इसके सॉफ्टवेयर अपना देता है, पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट का, लॉजिस्टिक का सॉफ्टवेयर और नेटवर्क सॉल्यूशंस, ये सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है। तो बिहार के बच्चे इस तरीके से, और ये इसने लैब में, हमारे यहाँ हमारे लैब का हर सिस्टम ये फ्री में संभाल देता था। तो इसने 8-8 बजे तक रहता था सुबह आकर के। तो जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी कहानी गजब हो जा रही है। तो ये साकेत, ये अभी एक स्टार्टअप बना रहा है पॉडकास्ट के ऊपर में। ऑलरेडी इसका एक स्टार्टअप अभी सक्सेसफुल चल रहा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट इसका क्लाइंट है। नया स्टार्टअप एक और शुरू कर रहा है। इसने डेस्टिनेशन वेडिंग करी आगरा में, मुझे बुलाया, आगरा में डेस्टिनेशन वेडिंग करी। तो हमको बड़ा गर्व हुआ कि अब स्टूडेंट मेरे डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, और पिताजी नहीं है, माँ इसकी अकेली थी। तो बड़ा अच्छी इस सब बच्चों की सफलता देखकर ये कहानियां लगती है। विप्रो ने 296 बच्चों को इस बार लिया। तो ये एक छोटा सा वीडियो का चलाना है, जिसका उद्घाटन बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2009 में किया गया था। इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि यह राज्य में युवाओं को आत्मनिर्भर होने में, स्किलफुल होने में और अपने पांव पे खड़े होने में मदद करेगा। 1 दशक से ज्यादा के पड़ाव में सिमेज राज्य के लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा है, और आज राज्य में मैनेजमेंट तथा आईटी की वोकेशनल उच्च शिक्षा के लिए अभिभावकों तथा छात्रों की पहली पसंद बन गया है सिमेज। और उसकी वजह है कि पढ़ाई, रिजल्ट और प्लेसमेंट में सबसे आगे है सिमेज। बिहार राज्य के सभी कॉलेजेस के प्लेसमेंट को अगर एक साथ मिला दें तो भी अकेला सिमेज समूह का प्लेसमेंट है सबसे बढ़कर और सबसे ज्यादा।
अभी हाल में ही हुए आईसीआईसीआई बैंक के प्लेसमेंट ड्राइव की बात करें तो इस 2 दिवसीय प्लेसमेंट ड्राइव में सिमेज समूह से 259 छात्रों को जॉब मिला है। देखिए एक नजारा मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो नजारा बिहार में सिर्फ सिमेज में दिखाना पॉसिबल है कि जितने बच्चों को जॉब मिला है उसको पूरा हॉल भर गया है। आप ग्रुप फोटोग्राफ नहीं कर सकते हैं। मैं कहा ग्रुप फोटोग्राफ करूँ बच्चों का, हेलो, ये पूरा हॉल भर के बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था एक बार, आ नहीं पाएगा। पूरा हॉल भर के बच्चों का प्लेसमेंट ये सिर्फ में ही पॉसिबल है। तो पीछे खड़े हैं, इन सारे बच्चों को आईसीआईसीआई बैंक ने हैदराबाद में 3.5 लाख का पैकेज ऑफर किया। पहले भी सैकड़ों सिमेजियंस को एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ग्रामीण बैंक इत्यादि में नौकरी मिली है। अब तक कुल 2400 से भी ज्यादा सिमेजियंस बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी तरह से 3500 से भी ज्यादा सिमेज समूह के बीसी और बीएससी आईटी के छात्र टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, एसेंचर, आईबीएम जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि खूब तरक्की भी कर रहे हैं। सिमेज समूह के छात्र अनिल सरस्वती पेपाल में 37 लाख के पैकेज पे काम कर रहे हैं। अनिल पहले पेपाल में था, अभी लाख का पैकेज। इंटर में कृष्ण गया। कुणाल को मिला 23 लाख का पैकेज। अन्य छात्रों को भी मिला है लाखों का पैकेज। अगर पढ़ाई और रिजल्ट की बात करें तो उसमें भी सिमेज समूह के छात्रों ने गाड़े हैं सफलता के झंडे। साल दर साल हर साल सिमेज के ही छात्र होते रहे हैं विश्वविद्यालय टॉपर और पाते रहे हैं गोल्ड मेडल माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से। वर्ष 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 हर साल सिमेज के ही छात्रों को मिलता रहा है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक। सिमेज समूह के छात्रों की इस अद्भुत सफलता के पीछे कारण है सिमेज समूह की पढ़ाई, अनुशासन और हर एक विश्वविद्यालय कोर्स के साथ कराए जाने वाले कुछ स्पेशल कोर्स। जहां सिमेज समूह में सोमवार से शनिवार तक रोज 5 से 7 घंटे की पढ़ाई होती है, वहीं हर एक कोर्स के साथ कुछ एड ऑन कोर्सेज भी कराए जाते हैं। ये सभी एड ऑन कोर्सेज इंडस्ट्री की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार बनाए गए हैं। और ये एड ऑन कोर्स तो मैं चूंकि समय में बचाना है, मैं आगे चलूंगा। ये खबरों को आप लोगों के बीच में हम लोग ये वीडियो का लिंक ग्रुप में डाल देंगे। ये हमारा अभी जो वर्तमान कॉलेज है, बहुत छोटे छोटे संस्थान हमारे हैं, सफलता बहुत बड़ी मिली है, लेकिन हमने आपको आज यहाँ इस कार्यक्रम में इसलिए भी बुलाया है कि जो हम भविष्य की परिकल्पना कर रहे हैं 2024 में, उस परिकल्पना में हमें बिहार के सभी शिक्षकों का सहयोग चाहिए जो हम काम करने वाले हैं। ये हमारा वर्तमान कॉलेज की भवन बिल्डिंग है, ये हमारा कंप्यूटर लैब है, ये भी हमारा कंप्यूटर लैब है। अभी हमारे पास अभी 6 कंप्यूटर लैब्स हैं सारे। अब अभी जितने भी क्लासरूम्स हमारे हैं, आई हैव गॉट टोटल 39 ये जो स्मार्ट पैनल आप देख रहे हैं, हमने इसको चेंज कर लिया क्योंकि टीचर्स को बड़ा कंफर्ट हो गया इसमें। अब ये परिकल्पना है हमारी कि बिहार में हम एक स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें। पहला बिहार का कौशल और उद्यमिता का विश्वविद्यालय, और ये काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। मेरी उम्मीद है कि जल्द ही हम इसकी शुरुआत कर पाएंगे। और हमने आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर टाई अप किया है। अब तक 25,000 कोर्सेज करवा चुके हैं। ये कोर्स फ्री होते हैं। आपके यहाँ अभी 12th पास जो स्टूडेंट्स हैं, हम लोग आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक देंगे। कई सारे कोर्सेज हैं, PHP में, जावा में, सी में, रूबी में, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का कोर्स है जो ऑनलाइन आईआईटी कराती है। उसका हमारे पास बिहार के हम सुपर रिसोर्स सेंटर हैं। फ्री कोर्स होगा, ऑनलाइन होगा और सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन, कोर्स, सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन सब फ्री होगा। तो ये हम लोग आपको आपके माध्यम से आपके स्टूडेंट्स को ऑफर कर पाएंगे। हम आईआईटी बॉम्बे की तरफ से बिहार के फॉस क्लब और रिमोट सेंटर हैं। अगर आप में से कोई टेक्नोलॉजी के टीचर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं, अगर उनको कोई आईआईटी का कोर्स करना हो, हम लोग का साल में 3 FDP होता है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो वो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन आईआईटी करती है, टीचर्स आईआईटी के होते हैं। तो आप में से जो भी कंप्यूटर साइंस के टीचर्स हैं, वो हमारे रिमोट सेंटर के माध्यम से, और फ्री होगा ये फ्री कोर्स होगा। लेकिन आपको आना पड़ेगा सिमेज में, क्योंकि उसमें क्लासरूम में हम लोग ये सिस्टम रहता है कि लाइव सवाल जवाब कर सकते हैं। वहां के टीचर से आप बातचीत करेंगे, लाइव बातचीत होगी, सब कुछ होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस टिस के हम सेंटर हैं बिहार में। NPTEL में हमारा अभी 12,000 एनरोलमेंट हुआ है जो IIT मद्रास कराती है। और इस स्किल एंटरप्रेन्योरशिप विश्वविद्यालय के साथ मेरा मिशन है, अगले 5 सालों में मुझे बिहार में 1 लाख बच्चों को रोजगार देना है। 1 लाख बच्चों को रोजगार देना है। और ये
मतलब मुझे लगता है कि मेरे लिए ये मैं इतना लक्ष्य लेके चल सकता हूं और हासिल कर सकता हूं, और अगर मैं इतना ना रखूं तो फिर इतनी बड़ी सोच, इतनी बड़ी परिकल्पना की कोई मतलब ही नहीं है। और बिहार में स्कोप है, बिहार में बहुत स्कोप है। हम लोग करियर कैटलिस्ट अगर याद करें, आज यहाँ करियर कैटलिस्ट का स्टूडेंट भी है, दीपक कहाँ है? हाँ, हाथ अरे खड़ा हो गया। तो ये दीपक मेरा छात्र आज यहाँ आया और मुझे मिला, मुझे आकर के पहुंच हुआ तो मुझे बताया। तो ये करियर कैटलिस्ट हम लोग कुलड़िया कॉम्प्लेक्स में शुरू किए थे और ये वहाँ का छात्र है। और वहाँ करियर कैटलिस्ट में उस जमाने में हमने करीब 25,000 से ऊपर छात्रों को जॉब लगवाया था, जो कि बीपीओ में फोकस था खाली हमारा उस समय। सिमेज बाद में शुरू हुआ 2009 में। तो प्लीज दीपक बैठ जाइए, ये अभी मोटिवेशनल कोच है, कई कंपनियों में ये अपनी ट्रेनिंग दे रहा है। तो और ये हमारा सेगमेंट है जो बिग डेटा है, आईओटी है, एंड्रॉइड ऐप है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। तो इन पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग है। और मैं यहाँ आपके माध्यम से आपके स्कूल के अगर 12th के बच्चे एंड्रॉइड ऐप बनाना सीखना चाहते हैं तो वो कोर्स मैं आप लोगों को, मतलब बच्चों के लिए एक कुछ हम लोग को लगता है 3 दिन अगर आप दें और वो बच्चा 3 दिन 4 या 5 घंटे का 5 घंटा 3 दिन अगर आए तो एंड्रॉइड ऐप बनाना सीख जाएगा। जो स्कूल के 12th के स्टूडेंट होंगे उनको हम बेसिक प्रोग्रामिंग के साथ एंड्रॉइड ऐप बनाना सिखा देंगे और वो अपना खुद का ऐप बना पाएगा 3 दिन के कोर्स में, 3 दिन में 15 घंटे की पढ़ाई में। तो ये मैं ऑफर करना चाहूंगा आप लोगों को। मैं इसका ग्रुप में एक फॉर्म बना के दूंगा। आपके स्टूडेंट्स ये कोर्स करने के लिए सिमेज में आकर के, सर्टिफिकेट कोर्स होगा और मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूंगा इस 3 दिन के कोर्स का। ये आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा एंड्रॉइड का कोर्स। ये सिमेज की बिल्डिंग मुझे लगता है कि जनवरी या फरवरी में इसका इनॉग्रेशन हम लोग करेंगे। अभी काफी तैयार हो चुकी है। मैं ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, उसमें इस बिल्डिंग का एग्जिस्ट अभी का फोटो भी होगा, लेकिन वो फोटोग्राफ्स थोड़े पुराने हैं, मैंने करंट फोटो नहीं डाल पाया हूं मैं। इसमें पूरा बिल्डिंग का वीडियो है, ये वीडियो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख पाएंगे। आगे बढ़ा दो। अच्छा ठीक है। ये एक सिमेज विश्वविद्यालय जो मैंने चर्चा करी, तो मैं पटना बाईपास रोड पर सिमेज का एक शिक्षण संस्थान बना रहा हूं। जो ये वाला संस्थान है ये 1,65,000 स्क्वायर फीट में है और मैनेजमेंट और आईटी के क्षेत्र में बिहार में इतना बड़ा संस्थान अभी तक किसी ने, सरकार ने भी बीबीए बीसीए के लिए नहीं बनाया है। ये सबसे बड़ा संस्थान होगा जो पाटलिपुत्रा में बन रहा है और इससे बड़ा बन रहा है पटना बाईपास रोड में। ये 2025 में शुरू हो पाएगा। अभी 3-4 तल्ले बन चुका है, ये तो काफी बन चुका है। तो ये दोनों संस्थान के साथ हम, और मेरा बिल्कुल फोकस क्लियर है कि मुझे मैनेजमेंट और आईटी सेक्टर जहां पे मैं बच्चों को इंगेज करा पाता हूं, जॉब दिला पाता हूं, मुझे उसी पढ़ाई पर फोकस करना है। हाँ, एक लॉ का कोर्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। लॉ में बहुत अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, अच्छी पढ़ाई हो रही है और लॉ में डिमांड भी है और लॉ में एम्प्लॉयमेंट भी है। तो वी आर स्टार्टिंग लॉ फ्रॉम 2024। नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ लॉ का भी स्ट्रीम रहेगा। अभी सिर्फ मैनेजमेंट और आईटी का है। तो ये वहाँ का कॉलेज का इंटीरियर का व्यू है जो बन के तैयार। ये पाटलिपुत्रा वाले का है, जिस व्यू को हम लोग वहां पर इंप्लीमेंट करना है हमें। और जो उसका एग्जिस्टिंग व्यू है, ये देखिए, ये वहां का एग्जिस्टिंग व्यू है बिल्डिंग का। ये लगभग 1 महीना पुराना है, अब पूरा ग्रेनाइट टाइल्स सब लग चुका है यहां पर। ये एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ्स है उस बिल्डिंग की, एक्चुअल फोटोग्राफ्स है ये 1-2 महीना पुरानी फोटो है। जनवरी में हम लोग इसको इनॉग्रेट कर पाएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। दिस इज द थिंग विच वी नीड टू अचीव। तो ये हमारा एक विजन है और 2024 में हम चाहते हैं कि बिहार के बच्चे जो बेहतर शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, जो मेरा एक पेन पॉइंट है, पेन पॉइंट माने कि मैं डिस्कस कर रहा था अभयानंद सर से, हर एक शिक्षण संस्थान का ये पेन पॉइंट हो गया है कि अच्छे बच्चे कहाँ से मिले। मतलब सीट हमारी जितनी, हम हमारे विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू साहब प्रोफेसर ए.के. नाग यहाँ पर हैं, तो इनका भी एक बार आप लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। और जितनी सीट हमें सर ने दी है, जितनी सीट्स हमारे पास हैं, सीट्स हमारी भर जाती हैं, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। सीट भरना विषय नहीं है, अच्छे बच्चों का आना जिनको हम कल को वापस उसी परंपरा में माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल और डेलॉइट और अर्नस्ट एंड यंग में भेज सकें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और वहां पर मुझे लगता है कि आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है कि हमारा जो इनपुट क्वालिटी है वो अगर इंप्रूव कर सके हम। तो हमने एक
अभियान अपने ट्रस्ट में अप्रूव कराया लास्ट 1 महीने पहले इस बैठक में कि हम अपनी बात को रखने के लिए बिहार में या बिहार के बाहर भी, इनफैक्ट हमारे यहाँ अभी नॉर्थ ईस्ट, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, ये इतने जगहों के बच्चे अभी ऑलरेडी हैं। नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, नेपाल से आ रहे हैं, और यूपी में जो हमारा जो बॉर्डरिंग जितना भी इलाका है, सब जगह से बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो हम अपनी बात को रखने के लिए किनको माध्यम बनाएं और कौन हमारी बात कह सकता है, तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक से बेहतर हमारे पास विकल्प, एक परस्पर सहयोग का संबंध। और टीचर्स आज के समय में अपने आप को अपडेट रखना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि अब वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता है कि 25 साल से पढ़ा रहे हैं और यही पढ़ा रहे हैं, अब हमको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच खंडेलिया सर हैं, जब हम कॉमर्स पढ़ते थे तब से पढ़ाते थे, तो हम लोग वाणिज्य महाविद्यालय में पढ़ते थे और सर उस वक्त भी पढ़ाते थे। तो लेकिन अब उस वक्त पता नहीं सर गैप के बारे में पढ़ाते थे कि नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब सर को यूएस गैप भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अब वो गैप भी आ गया है। अब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो यूएस का है वो भी आ गया है, तो इनको वो भी देखना होगा कि यूएस के अकाउंटिंग सिस्टम में और इंडिया के अकाउंटिंग सिस्टम में क्या इश्यूज है, क्या अंतर है। अब सीएमए आ गया है और कई तरह के और कोर्सेज आ गए हैं जो कि पहले नहीं थे। तो अपने आप को अपडेट करना एक शिक्षक की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप में से हर एक शिक्षक के पास अपने घर में एक निजी लाइब्रेरी होनी चाहिए, और इसके लिए हम सहयोग करने के लिए हमने एक कॉर्पस हमारे ट्रस्ट में तैयार किया है, जिसके थ्रू हम टीचर्स को निजी लाइब्रेरी के लिए, उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी के लिए, चाहे वो किताबें खरीदना चाहते हो किताबों के लिए, या फिर अगर आपको कंप्यूटर्स, लैपटॉप या टैब या डेस्कटॉप खरीदना है उसके लिए, या मोबाइल कोई अपग्रेड करना चाह रहे हैं उसके लिए, रिसर्च में ये सारी चीज़ें काम आ रही हैं। फैक्ट है कि हम जितनी देर कंप्यूटर पे रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, मुझे आदत हो गई है, मैं रोज कुछ ना कुछ मोबाइल पे ऐसा कंज्यूम करता हूं जिससे मुझे लगता है कि मुझे नया नॉलेज मिला। तो ये आदत आप सबको होगी, एंड यू ऑल वांट कि आपका मोबाइल जो हो वो बेस्ट हो, लेटेस्ट हो और फास्ट हो। तो ये ठीक है, ये ज़रूरत है, ये दिनचर्या है, ये सबके साथ है। तो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से ये चीज़ें शिक्षकों को प्रोवाइड करेंगे, इसके लिए हम आपको सहयोग कर सकेंगे। आपका सहयोग हमें मिल रहा है, हम आपको सहयोग करेंगे। तो एक पर्सनल लाइब्रेरी एनरिचमेंट प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं, जिसका डिटेल आप लोग को जो किट दिया गया है उसमें डाला गया है, और उसके माध्यम से आप लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स अगर बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, व्हाई डोंट सेंड फॉर पीजी प्रोग्राम्स लाइक MCA एंड MBA, और वहाँ पर भी बच्चे तैयारी करके जाएं। ऐसे वैसे जगह पर जा करके MBA MCA करने से अब कोई लाभ, क्योंकि बहुतायत में संस्थान है जो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, NIT है, JNU है, BHU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर अगर बच्चा तैयारी करके, हम लोग इसके लिए अपने BCA कोर्स या BSc IT कोर्स के साथ बच्चों को MCA एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं, और इसका परिणाम ये मिला है कि NIT त्रिची में, जमशेदपुर, अगरतला, मतलब सारे NITs में, और ये BHU में, और क्या नाम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, हर जगह हमारे सिमस के बच्चों को MCA में एडमिशन मिला, और वो बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को कॉलेज में कोर्स के दौरान ही ट्रेन करें, और उसका लाभ बच्चों को PG कोर्स में मिलेगा। और एक बात बताइए ना, बच्चे जब UG के लिए बाहर जाते हैं, माँ बाप का अच्छा खासा व्यय आता है ग्रेजुएशन कोर्स में 3 साल में, और फिर उनको PG भी कराते हैं, वो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी कराते हैं, वहाँ पर भी उनका व्यय आता है। तो अगर बाहर भेजना है तो वो PG के लिए भेज सकते हैं, और उसकी तैयारी करके जाएं, वो अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाएं। तो ये एक कॉन्सेप्ट माँ बाप में अभी, क्योंकि मजबूरी में अभी वो UG में ही बाहर भेज रहे हैं। इस तरह के कॉलेज में MCA पढ़ना चाहते हो तो उनके लिए बेहतर है कि वो पहले सिमित समूह से BCA या BSc IT का कोर्स करें। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे छात्र हुए हैं जिन्होंने हमारे यहाँ से BCA या BSc IT की पढ़ाई की, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे NIT वगैरह से MCA की पढ़ाई की। इसी तरह से जो छात्र आगे चलकर बिजनेस मैनेजमेंट के क्षेत्र में MBA की पढ़ाई IIM, IFS, XLRI इत्यादि से करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर है कि वो पहले सीमित समूह से BBA या BBM का कोर्स कर लें। हमारे BBA तथा BM के कई छात्र सीमित समूह के कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करने के पश्चात देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से MBA की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक परस्पर हम एक कम्युनिटी यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, जिस कम्युनिटी के माध्यम से हम अपने पेन पॉइंट को भी एड्रेस करना चाहते हैं। हमारा पेन पॉइंट है कि हमारे को वो बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं जिनका गणित स्ट्रांग हो, जिनका इंग्लिश अच्छा हो, या दोनों में से कोई एक चीज अच्छी हो।
मान लीजिए मैथ्स अच्छा है, बहुत विकल्प है उस बच्चे के लिए जिसका मैथ अच्छा है, उसको बहुत कुछ कराया जा सकता है। इंग्लिश अच्छी है, उसको भी बहुत तरीके से तैयार किया जा सकता है। अभी मैं यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट घोषणा करना चाहूँगा। यहाँ पे कॉमर्स के कई सारे शिक्षक आए हैं, अकाउंट्स के शिक्षक आए हैं। एक बीकॉम प्रोफेशनल का कोर्स आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के अधीन संचालित होता है। अगर यहाँ पर सिलेबस उसका आया हो तो वो सिलेबस मैं चाहूँगा जितने भी कॉमर्स अकाउंट्स के टीचर्स हैं उनको दिया जाए। सर आप देखिएगा, बताइएगा कि सिलेबस कैसा है। मैं उस सिलेबस को बाकी विश्वविद्यालयों के बीकॉम के सिलेबस से जब कंपेयर करता हूं तो पाता हूं कि ये बहुत ही आधुनिक और आज की ज़रूरत के अनुसार सिलेबस तैयार किया गया है। आप लोग अलग अलग विश्वविद्यालयों के बीकॉम के छात्रों को भी पढ़ाते हैं। तो ये जो बीकॉम प्रोफेशनल का कोर्स है और ये 3 साल का कोर्स प्रोफेशनल कोर्स है आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का, और इस कोर्स के लिए हमने 3 साल की फीस अपने कॉलेज में डिसाइड की है 1,31,000 रुपीज, 1,31,000 रुपए। ऐसे नाम लेके बोलना उचित शायद ना हो, लेकिन सरकार का कॉलेज है, वहां पर बीकॉम की फीस है 2,40,000 रुपए। और हम एक निजी नॉन ग्रांटेड, मतलब हमारे को कोई ग्रांट नहीं मिलता, कोई अनुदान नहीं मिलता है, और हमने फीस निर्धारित करी है बीकॉम के लिए 1,31,000 रुपए, सेमेस्टर की नहीं, साल की नहीं, पूरे 3 साल की। तो मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग परिवार का बच्चा है लेकिन अच्छा है, वो भी हमारे यहाँ आ सके। और इसके लिए जो कॉमर्स, और वो उसका सिलेबस भी बहुत अच्छा है, और उसके साथ हम उसको जीएसटी की पढ़ाई, अकाउंटिंग की पढ़ाई, स्टॉक मार्केट की पढ़ाई, एनबीएफसी, बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, जो शायद सिलेबस में ना हो लेकिन जिसमें जॉब्स हैं, वो सब कुछ हम उसके साथ उसको ऐड करके उसी फीस में, उसी 1,31,000 रुपीज़ की फीस में, 3 साल की फीस में ये मैं, और उसके साथ में मैंने ये भी कहा कि जो आपके बच्चे अगर चयनित होंगे तो आपको 20,000 रुपये का हम उसमें एक हमारे जो लाइब्रेरी प्रोग्राम के तहत आपको फंड दिया जाएगा, जिसके बदले में आप कंप्यूटर या मोबाइल या किताबें खरीद सकते हैं। मतलब फोकस मेरा इस साल ये है कि जो हम नया कैंपस बना रहे हैं वहाँ हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स को अचीव कर पाएँ, अट्रैक्ट कर पाएं। और अगर हम बेस्ट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं तो मेरा रिजल्ट हम अलग लेवल का दे पाएंगे, और वो रिजल्ट जब हम और अलग लेवल का दे पाएंगे, मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो बच्चे, उनका रिजल्ट जो है वही हमारे संस्थान को बहुत आगे ले जाएगा। तो ये एक परस्पर सहयोग का काम हो सकता है जिसमें कि आप बच्चों को, और आपको मैं एक चीज और कहूंगा कि आज आप यहाँ आए हैं, आप एक बार हमारे कॉलेज में आए, वहाँ हमारे बच्चों से, शिक्षकों से हमारी व्यवस्था को देखेंगे, एक हम लोग कम्युनिटी यहाँ डेवलप करेंगे, और कुछ टीचिंग पेडागोजी से संबंधित जो हमारा रिसर्च है जिस पर हमने काम किया है, वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो हमने प्लेटफॉर्म बनाए हैं कि कैसे हम क्लास प्लान बनाते हैं, क्लास प्लान में क्या करते हैं, तो वो ये जो हम लोग आज एक ग्रुप बना है, इस ग्रुप के माध्यम से हम जो बहुत ही नोबल टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, पेडागोजिकल इनोवेशंस हैं, इनको भी शेयर करना चाहेंगे, और आप लोगों को भी हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहेंगे कि आप भी अपना शेयर करें, और सभी टीचर्स आपस में एक दूसरे के बीच में अपना जो इनोवेशन है वो शेयर करें और नॉलेज को डिसेमिनेट करें। तो ये ग्रुप को हम लोग एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन के रूप में देखते हैं, जहां पर हम लोग बिहार, सारे जिलों से, काफ़ी जगह से लोग आए हैं। तो एक हमारा एक शिक्षकों का एक ऐसा नेटवर्क आज क्रिएट हो रहा है, और ये आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, और शिक्षक जुड़ते जाएंगे। और आप में से ज़्यादातर लोगों का जब मैं प्रोफाइल स्क्रीन कर रहा था, जो आपने अपने डिटेल्स डाले थे, वो देख करके किस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। वो बच्ची के बारे में जब मैंने पढ़ा, जो वो बच्ची को ब्लाइंडनेस, मतलब काफ़ी कितना 6% का बताया गया कि अब उसमें विज़न रह गया है, लेकिन वो पढ़ाती है, रोज़ पढ़ाती है, बच्चों को पढ़ा रही है। तो ऐसे जो शिक्षक हैं, जो लोग डिवोटेड हैं, और मैं यही कहता हूँ कि टीचर्स ने तो अपने आप को डिवोट कर दिया है बच्चों के लिए। तो आप लोगों सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir.